Good morning everyone. Today we will talk about class 11th biology, chapter number 1, that is the living world. So, first of all, in this chapter, the topics are we have to learn about the characteristics of living world, major characteristics and other characteristics of living organism, and diversity and taxonomic categories and aids, that is systematic, binomial nomenclature, taxonomic categories and taxonomical aid. चैप्टर क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड. इसमें जो हम लिविंग वर्ल्ड है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक डाइवर्सिटी, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड एड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट our first topic, that is living world. So living world, if we talk about the characteristics of living world, you know that the earth is a home for diverse form of living organisms in different habitats. All these living organisms constitutes the living world. That means the earth is a home for diverse form of living organisms in different habits. कि अर्थ जो है आपकी एक घर है फॉर डाइवर्स फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और यानी कि डाइवर्स मतलब क्या है, इसमें क्या है, बहुत सारी आपकी क्या वेरिएशन है और वो अलग अलग हैबिटेट्स में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं. तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या बनता है आपका लिविंग वर्ल्ड बनता है. सो दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन वेरियस हैबिटेट्स लाइक फॉरेस्ट, माउंटेन, desert, ocean, fresh water bodies, hot springs, polar regions and almost everywhere of the earth. And they also possess some certain characteristics which make differ them from non-living things. So some of the characteristics are growth, that means increase in mass. Another one is consciousness, that means respond to environmental stimuli. Another one is reproduction, which means to produce offspring. And another one is capable of carrying out metabolism, that means the bioreactions which occurs inside the body. So these are the some characteristics, basic characteristics of living. तो अगर हम बात करें आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं. कुछ फॉरेस्ट में, कुछ माउंटेन में, कुछ डेजर्ट्स में, कुछ आपके ओशन में रहेंगे, कुछ आपका फ्रेश वाटर बॉडीज में, कुछ आपका पोलर रीजन में. ऑलमोस्ट हर एक पार्ट अर्थ के कौन रहता है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके एग्जिस्ट करते हैं. तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ करेक्टर्स होते हैं जो इनको क्या करते हैं आपका डिफरेंट बनाते हैं, अलग बनाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से. तो कुछ करेक्टर्स क्या आपके, जैसे कि ग्रोथ. ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अगर आपका ग्रोथ करेगा तो वो आपका किसके अंदर आएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आएगा. अगर वो कॉन्शियस होगा, दैट मीन्स वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा, तो भी वो आपका किसके अंदर आएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आएगा. अगर वो रिप्रोडक्शन करेगा, यानी कि अपने यंग वन को क्या करेगा, बर्थ देगा, तो वो आपका किसके अंदर आएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आएगा. दूसरा वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जैसे आपका जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी प्रोसेस अगर वो एग्जिस्ट करेगा, तो वो सब आपके किसके अंदर आएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आएंगे. So let's talk about the major characteristics of living organisms. So first one is your growth. So growth is generally that thing in which there is an increase in mass and increase in number of cells. Now that means whenever, because you have learned earlier that growth depends on the division of cells. So if the cell divides, then growth will happen. So what happen in multicellular organisms, actually growth occurs by cell division or increase in number of cells, and this growth occurs continuously in plants throughout their life span, whereas in case of animals or multicellular organisms, the growth occurs up to a certain age. After that, it happens due to the replacement of lost cells, which occurs throughout the life. And if we talk about unicellular organisms, growth can be observed under the microscope. That means by counting a simple number of cells, we can examine about the growth of unicellular organisms. Such organisms grow by cell division, and unicellular organisms basically made up of a single cell. जो पहला आपका करेक्टरिस्टिक है वो आपका क्या है, ग्रोथ है.
यानी कि ग्रोथ मतलब क्या है कि आपका कि मास में क्या होना, इंक्रीजमेंट होना, या फिर नंबर ऑफ सेल्स में क्या होना, आपका इंक्रीज होना। जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, आपका सेल आपकी क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, तो उस पर क्या करता है, आपका डिपेंड होता है कि आप जो आपकी बॉडी है वो आपकी ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है। प्लांट में क्या होता है कि आपका हर टाइम, पूरे टाइम वो लोग क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। लेकिन हमारे उसमें क्या होता है कि कुछ टाइम बाद क्या होता है, हमारी जो सेल्स हैं वो आपकी क्या करती हैं, उनमें उनकी क्या होती है, आपकी जो नए सेल्स हैं वो उनको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रोथ होती है वो हमारे वहाँ पे सर्टेन हो जाती है एक पार्टिकुलर एज के बाद। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में की बात करें तो उनकी ग्रोथ हमें कैसे पता चलेगी, हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, काउंट करके फिर उनको हम क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स की। तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है, जैसे माउंटेन है, बोल्डर्स और सैंड ड्यून है, ये भी क्या है, आपकी साइज में बढ़ते हैं, है ना, लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल सरफेस इनका क्या है, इंक्रीज होता है। जबकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ, उनकी जो ग्रोथ है वो कैसी होती है, इंटरनली भी होती है। और नॉन लिविंग थिंग में जो ग्रोथ होगी वो आपकी कैसी होगी, एक्सटर्नली होगी। इसीलिए जो है नॉन लिविंग थिंग आपका किसके अंदर आता है, नॉन लिविंग के अंदर आता है, और लिविंग थिंग्स जो है आपका लिविंग के अंदर आता है। So if we talk about the that about your mountain boulders and dunes also grow in size, but just by accumulating the material on their external surface, whereas in living thing the cell division takes place internally, so they makes difference from non-living things to us. Next one is your reproduction. So if we talk about reproduction, it is also a characteristics of living organisms in which they produce their offspring, and their feature is just similar to their, so to those of their parents. If we talk about multicellular organisms, so the mode of reproduction is generally sexual. That means which involves fusion of two kinds of gametes. Some living organisms also reproduce by asexual means, that is fungi, yeast. They possess the process of fermentation, fragmentation, budding, etc. So let's talk about another topic, that is metabolism. So metabolism is another characteristics which define about all living, and we know that all living things are made up of chemicals which are constantly being formed or changed into some biomolecules. So this process is your metabolism. It occurs in all unicellular and your multicellular. सो अगर हम बात करें नेक्स्ट करेक्टर की, तो आपका क्या है, रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन मतलब वो प्रोसेस जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने यंग वंस को क्या करेंगे, आपका बर्थ देंगे, ठीक है। और उनके जो करेक्टर्स हैं, कुछ करेक्टर्स उनके पेरेंट्स से क्या हैं, आपके मिलते जुलते रहेंगे। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो आपका क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस जहाँ पे दो पेरेंट्स आपके आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, और मिलने के बाद किसी यंग वन को क्या करेंगे, बर्थ करेंगे। और अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे फंजाई हो गया, हाइड्रा हो गया, तो ये कैसे करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है आपका, जहाँ पे आप क्या करो, जहाँ पे एक गैमेट्स की जरूरत पड़ती है। क्लास 10th में आपने जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पढ़ा होगा कि आपका क्या होता है, जैसे हमने फ्रेगमेंटेशन हो गया, आपका बर्डिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया, ये सारी प्रोसेस जब हमने पढ़ी थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो यही चीज यहाँ पे भी। नेक्स्ट है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है कि आपका हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल से क्या है, मिलके बना होता है। अब वो केमिकल आपका क्या है, किसी अदर सब्सटेंस में ट्रांसफर हो सकता है। जैसे आपका, आपकी बॉडी में आपने खाना खाया, वो सिंपलर फॉर्म में टूटता है, या फिर सिंपलर फॉर्म से वो आपका, उससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। फिर कुछ एनर्जी हमारी बॉडी स्टोर कर देती है, और कुछ एनर्जी से हम क्या करते हैं, काम करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द अनदर लेवल और करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ऑल यू नो दैट ऑल द सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, वेदर इट इज प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन. And we know that unicellular organisms are made up of single cell, whereas multicellular organisms are made up of millions of cells. And these cells also contain protoplasm and cell organelles. Due to that, we perform various activities and various life processes. Another character is here, that is consciousness.
Consciousness means response. We know that all living things, from the simplest, that is prokaryotes, to the complex, that is eukaryotes, have ability to sense their environment. They respond to various, that is physical, chemical, biological and stimuli. They also respond towards the factor like water, temperature, pollutant and other organisms. So whether it is plant or whether another organism, everyone will show consciousness. It also, this consciousness also make differ from नॉन लिविंग. सो बात करते हैं आपकी अनदर, जो अदर करेक्टर है वो आपका क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेल का क्या होना, ऑर्गेनाइज्ड होना आपकी बॉडी में. तो हम जानते हैं कि सेल आपका क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी बॉडी का. ठीक है, तो कुछ आपके ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी कि जिनमें एक सेल पाई जाती है. कुछ आपके क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, यानी कि जिसमें आपकी बहुत सारी सेल्स आपका क्या है, पाए जाते हैं. इसके अलावा उनमें प्रोटोप्लाज्म होता है और सेल ऑर्गेनेल, यानी कि लिविंग मैटर और अदर पार्ट ऑफ द सेल आपकी क्या है, प्रेजेंट रहता है. तो ये करते हैं क्या है, ये हमें हमारी वेरियस लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने में क्या करते हैं, आपका हेल्प करते हैं. दूसरा है आपका कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है, आपका रिस्पॉन्स. हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, आपका रिस्पॉन्स देता है. जैसे टच मी नॉट प्लांट है, तो प्लांट भी क्या करते हैं, आपका रिस्पॉन्स देते हैं. सनफ्लावर हो गया, हम लोग हैं, हम भी आपका क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं. तो जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स देंगे वो सारा आपका किसके अंदर आते हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर. अदर वन इज योर, दैट इज लास्ट करेक्टर इज योर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. So the body of living organism is generally organized and made up of several components and subcomponents which cooperate with each other and performs the function of whole body. And another one is that is your, the various life processes generally conducted by some genetic material, and that genetic material is your DNA. And what is DNA? It is responsible for the expression of several traits in organism. Another simple characters are shape and size, movement, variation, healing and repair, excretion, which makes us differ from the non-living thing. नेक्स्ट करेक्टर है आपका, डेट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. आप सभी को पता है कि हमारी जो बॉडी है वो आपकी क्या है, अलग अलग उससे क्या होती है, अलग अलग कंपोनेंट से ऑर्गेनाइज्ड होती है. जैसे सेल आपका क्या है, टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, टिश्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे, ऑर्गन फिर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा और ऑर्गन सिस्टम फिर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा. इसके अलावा क्या होता है आपका, एक जेनेटिक मटेरियल भी है, जैसे डीएनए है. डीएनए क्या करता है आपका, हमारे जो करेक्टर्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स के करेक्टर है, वो हम तक लेके आता है. तो ये भी आपका क्या है, करेक्टर है आपका किसके ऊपर, डेट इज आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के करेक्टर्स के ऊपर. कि हम में क्या होता है, डीएनए होता है, लेकिन कुछ वायरस और उनमें क्या होता है, आपका आरएनए प्रेजेंट होता है. इसके अलावा अगर हम और सिंपल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सेल्फ रेगुलेशन होगा, शेप एंड साइज हमारा और नॉन लिविंग थिंग का, हीलिंग एंड आपका रिपेयरिंग की प्रोसेस, एडेप्टेशन, एक्सक्रीशन है जो हमें इनसे क्या करती है, आपका अलग बनाती है. थैंक यू.